In today's class, we'll study about the properties, physical and chemical properties of bases. So let us start. A base. What is base? We in our previous class we have already studied about the acid. As compared with that, we are going to study about the bases. Base is what? Base is a chemical compound which reacts with hydronium ions, H positive hydronium ions, furnished by an acid to form a salt and water only. So bases are this. So we'll come up with the physical property. bases हैं क्या? वो ऐसे कंपाउंड्स हैं जो रिएक्ट करते हैं हाइड्रोनियम आयन से बाय एन एसिड, क्या फॉर्म करते हैं? सॉल्ट और वाटर. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं. तो फिजिकल प्रॉपर्टी, बेसिस आर ऑक्साइड्स. बेसिस हैं क्या? रियल में वो ऑक्साइड्स हैं या वो हाइड्रो ऑक्साइड्स हैं. किसके? मेटल्स के. दे हैव बिटर टेस्ट एंड आर सोपी टू टच. वो कैसे हैं? टेस्ट में बिटर हैं, कड़वे हैं, जबकि एसिड्स कैसे थे? सोर है इन टेस्ट. एंड दे आर रफ टू टच, बट दीज बेसिस आर soapy to touch. तो है क्या? Base, when base reacts with an acid, it's going to form salt plus water. Here you can see with the example, sodium hydroxide is a base. This is going to react with HCl, that is an acid, salt NaCl, and water is going to form copper oxide. It is oxide. What they have said, bases are what? Bases are oxides or hydroxides of metals. So here this is OH, hydroxide. Here O, only O is there, that is copper oxide. So copper oxide reacts with HCl, is going to form copper chloride and H2O water. Magnesium hydroxide react with HCl, is going to form the corresponding salt magnesium chloride, and again water is going to form. A large number of bases are amorphous solids. Some are crystalline. जिससे भी बहुत सारे जो bases हैं वो amorphous solids हैं, जबकि कुछ कैसे हैं? crystalline solids. Crystals are going to form. After that, caustic alkalis. Caustic alkalis we are going to discuss here. What are alkalis? So alkalis हैं क्या? अभी alkalis, and alkali is a base. alkali भी क्या है? It is also a base which is soluble in water. ऐसे bases जो water में soluble हैं वो alkali कहलाते हैं. एंड furnishes hydroxyl ions. और वो क्या रिलीज़ करते हैं या वो क्या डिसोशिएट्स करते हैं? वो डिसोशिएट करते हैं OH negative ions as the only negative ions in the aqueous solution. और उस aqueous solution में यही OH negative ion ही एक aqueous में solution में एक negative ion है. बाकी positive ion जो acids के आपको मिल रहे होते हैं तब जब acid dissociates हो रहा होता है. Any which is soluble in water, any base which that is soluble in water. Here base I have not written. Any base that is or which is soluble in water is able to give OH negative ion that will act as alkali. ऐसा कोई भी base जो water में soluble है वो क्या करेगा? वो OH negative ions देगा, जिसको कहलाया जाए, जो कि वर्क करेगा एल्कली की तरह, और वो एल्कली ही होंगे. जैसे है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस, बेरियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा. ऑल एल्कलीज आर बेसिस. सारे के, यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि सारे के सारी एल्कलीज क्या हैं? वो बेसिस हैं. लेकिन सारे के सारे बेसिस, बट ऑल बेसिस आर नॉट alkali. For example, copper hydroxide is a base but not an alkali as it is insoluble in water. क्योंकि ये water में soluble नहीं है, इसलिए copper oxide क्या है? एक alkali नहीं है, जबकि ये base है. Now okay, so we are coming back to the properties. तो properties में हमने ये last point देखा था कि बहुत सारे जो बेसिस है वो एमॉर्फस सॉलिड्स हैं, लेकिन कुछ ही हैं क्रिस्टल फॉर्म में. जैसे आपने क्रिस्टल फॉर्म में सॉल्ट देखा है, क्रिस्टल फॉर्म में शुगर देखी है, वैसे ही क्रिस्टल फॉर्म में हैं थोड़े से, लेकिन ज़्यादातर
जैसे आपके रॉक्स हैं एमोर्फोसॉलिस, बहुत हार्ड क्रिस्टलाइन नहीं है वो चीज़। आफ्टर दैट कास्टिक एल्कलीज। अब एल्कली समझ आ गया। अब कास्टिक एल्कलीज में क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड हैव कोरोसिव एक्शन ऑन स्किन। तो ये एसिड्स की तरह आपके स्किन पे कोरोसिव मीन्स आपके स्किन को बर्न कर सकते हैं, ऐसे इसके रिएक्शंस, एसिड्स के एक्शंस हो सकते हैं। एल्कलीज आर सॉल्युबल इन वाटर। जो एल्कलीज हैं आपके जितने भी, वो वाटर में सॉल्युबल हैं एंड देयर एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। और उनका जो एक्वस सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करता है। The process of dissolution of an alkali in water is highly exothermic। और वहीं पे जब हम एल्कली को वाटर में डिज़ोल्व कर रहे होते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक हीट रिलीज़ करने वाला है। इन्वॉल्व लिबरेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ होती है। एल्कली टर्न द कलर ऑफ रेड लिटमस सॉल्यूशंस और पेपर फ्रॉम रेड टू ब्लू, राइट। नेक्स्ट, एल्कली गिव अ पिंक कलर्स विद फेनोप्थलीन। तो यहाँ पे इंडिकेटर्स का टेस्ट भी बता रहे हैं। एल्कलीज टर्न द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन फ्रॉम ऑरेंज टू येलो। तो यहाँ पे लिटमस पेपर के साथ ब्लू हो जाता है, पिंक कलर ये फेनोप्थलीन में देता है, वहीं पे मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन ऑरेंज से येलो हो जाता है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस ऑन द स्ट्रेंथ। जैसे हमने एसिड्स की स्ट्रेंथ के बेसिस पे एसिड्स को क्लासीफाई किया था, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी आर हैविंग bases also, classification of bases also, classification of bases on the strength, higher the concentration of hydroxide। जितने ज़्यादा OH आयन, OH नेगेटिव आयन्स होंगे, greater the strength of the base, राइट। जितने ज़्यादा OH नेगेटिव आयन्स होंगे उतने ही स्ट्रॉन्ग आपका बेस होगा। स्ट्रॉन्ग बेस, द बेस विच डिसोसिएट्स completely in aqueous solution by producing a high concentration of OH ions are called the strong base। तो वो बेसिस जो पूरी तरह से डिसोशिएट हो जाए एक्वस सॉल्यूशन में और प्रोड्यूस करे हाई कंसनट्रेशन OH आयंस, वो आपके स्ट्रॉन्ग बेस हैं। इसमें एग्जांपल्स है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे एग्जांपल्स हैं। देयर आर मैनी मोर एक्स्ट्राज ऑल्सो। जबकि वीक बेस क्या होंगे, the base which dissociates only partially in aqueous solution to produce a low concentration of OH negative ions are called weak base। जिसमें कि कम कंसंट्रेशन में कम निकलेंगे OH ions, वो आपके होंगे कैसे, वीक बेस। तो जिसमें है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड फ्यू मोर। नाउ कंसंट्रेशन ऑफ एल्कली। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कंसंट्रेशन की, कि डाइल्यूट है एल्कली या कंसंट्रेटेड है, बेस और एल्कली। we will use these two words simultaneously। हम कभी ये वर्ड्स यूज़ करते हैं, लेकिन ये याद रखना है एल्कलीज वही होंगे जो वाटर सॉल्युबल बेसिस होंगे, राइट। तो सो द सॉल्यूशन ऑफ एन एल्कली कंटेनिंग अ रिलेटिवली हायर परसेंटेज ऑफ द एल्कली इज कॉल्ड कंसनट्रेटेड एल्कली। जिसमें परसेंटेज एल्कली का ज़्यादा होगा, परसेंटेज बेस का ज़्यादा होगा, वही होगा यहाँ पे कंसनट्रेटेड एल्कली। वाइल डाइल्यूट में क्या होगा, वाटर का कंटेंट ज़्यादा होगा। द एल्कली सॉल्यूशन कंटेनिंग अ रिलेटिवली लोअर परसेंटेज ऑफ द एल्कलीज रेफर्स टू अ डाइल्यूट एल्कली। इसको डाइल्यूट एल्कली बोला जाएगा। नाउ ये तो थी यहाँ तक फिजिकल प्रॉपर्टीज that we have discussed about the bases। Today we will discuss one chemical property that you have already studied in your first chapter, that is neutralization reaction। This comes in the properties of base। So base, what the base do, when a base react with an acid is going to form salt and water। और यहाँ पे ये जो सॉल्ट बनता है ये पूरी तरह से न्यूट्रल हो जाता है। तो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज सेड टू बी एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बिकॉज व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स, जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो न्यूट्रल ही होगा। सो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड HCl इज गोइंग टू रिएक्ट विद दैट करस्पॉन्डिंग सॉल्ट ही बनेगा, मेटल सॉल्ट, पोटेशियम क्लोराइड एंड वाटर। आफ्टर दैट इफ आयरन हाइड्रोक्साइड इज देयर, बेस है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे ये फेरिक सल्फेट इज गोइंग टू फॉर्म वाटर। कॉपर ऑक्साइड
HCl, copper chloride, H2O. The same with hydroxide, copper hydroxide, hydrochloric acid, then calcium chloride. It will not be calcium, it will be copper chloride or water. Here you can do this also. If it is calcium hydroxide, then also it's going to form calcium chloride. All right, so with this we're going to end up in today's topic. In our next class we're going to continue with the properties of bases, some more properties of bases. Still, you should revise the topics that are completed